वेलकम बैक। इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। अगर आप ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द पावर ऑफ NLP। अगर आप ज़िंदगी में अपने आप को कहीं स्टक महसूस करें कि एक थॉट है, एक पैटर्न है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मैं इस दायरे को तोड़ नहीं पा रहा हूँ, दैट इज़ व्हेन NLP कैन कम टू योर रेस्क्यू। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक लीडर अपने ऑफिस और उसकी कैपेसिटी, उसके इम्पैक्ट को डिफ़ाइन करता है, या ऑन द अदर हैंड एक सिस्टम कहीं ना कहीं कितना भी इंसान विजनरी क्यों ना हो उसके लिए एक रोक, एक दायरा बना देता है। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि हम जिन लोगों पे यकीन करते हैं, उनको ऑफिस में पहुँचाते हैं, लीडरशिप पोजीशंस पे देखते हैं, थोड़े अरसे बाद उनका इम्पैक्ट या उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो अपनी बेहतरीन नीयत के बावजूद, बेहतरीन इंटेंशन के बावजूद दे आर अनएबल टू सॉर्ट ऑफ डिलीवर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग ओवर देयर, और अगर आप एक लीडर हैं और अपने आप को ऐसी जगह पे महसूस कर रहे हैं, what should you do? So Andy, this would be my question to you. If a leader is feeling that I have a vision but the system or the people around me are not supporting my vision and they're stuck, Yep. what should they do? That's a great question, and the key thing is that in order to get a team on board with you and motivated, you need to do three things within the team. So first of all, you need to set the expectations. So what's the goal? Where are you headed? When does it need to be done by? You need to give clear instructions. Then you need to engage the team. So you need to get them on board. So you need to get them to tap into their values, their motivators, the why. Why does the business need it? Why should they be interested in it? You know, is it going to advance their career if they get this done? Is it going to get them paid more? Is it going to give them other opportunities? And then when they know what they're doing and they know why they're doing it, they then need to be empowered for you to get out of the way as the leader and let them get on with it. Super. And the empowerment is that kind of missing piece of the puzzle, because when you've got a team that's doing all three of those things, then it will perform at its best. You know, while you were talking about it, my mind also wandered. Having that understanding of NLP through which you advise people is such a superpower. It is. But does it make people very, they, at least their thinking process, very transparent to you? Like you're very mindful of whether their audio and their video is matching. Whatever they're saying is also happening inside their head. Is that like, do you ever use your understanding in that fashion? I mean, it gives you more clues about signs that you can pick up from other people. It's like learning another language. Yes. You know, you start to pick up and understand that there are clues, there are signs in the words that people are saying, in how they say them, in maybe where they're looking when they're accessing information. There are little clues that we already are actually really good at picking up. Right. But what NLP enables you to do is consciously learn these things, so that then in a place when you want to use it to better communicate, you can maybe think a little bit more about how do you phrase this to match the other person. It isn't for somebody to understand you, it's often for you to communicate in a way where they're going to understand it much better. Wonderful. And that's what I think NLP is such a great tool set for that. I think that's a perspective, but it also makes, the second question a very obvious one. मेहर, इसका मतलब है जब हम किसी को हम कहते हैं ना रेड ब्लू पिंक ग्रीन फ्लैग्स कि अच्छा जी दैट बिहेवियर इज़ अ रेड फ्लैग एंड दैट बिहेवियर इज़ अ ग्रीन फ्लैग, वी आर ऑल, अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो एक इंसान हर वक्त आपको बता रहा होता है कि वो हकीकत में क्या है। क्या एक इंसान के सिर्फ अल्फाज से या थोड़ी देर उससे गुफ्तगू करके आप बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी पर्सनालिटी का? आई थिंक वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अलग पर्सनालिटी का हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। क्या हम 5 मिनट में लगा सकते हैं, 10 मिनट में लगा सकते हैं? बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों को ज़िंदगी भर जानते हैं और हम उनकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो हम किस तरीके से उसको देख सकते हैं? या तो हम उनको, वही बात है ना कि कुछ चीज़ें जो मेरे लिए रेड फ्लैग होंगी वो हो सकता है किसी और के लिए ना हो, कुछ चीज़ें जो मेरे लिए ग्रीन फ्लैग हो वो हो सकता है उस किसी और की नज़र इसको में। मिसाल से समझते हैं ना। हाँ। अभी दो लोग हैं जो एक दूसरे को जानने के प्रोसेस में, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि आपकी सोहबत, आपकी कंपनी, आपकी पर्सनालिटी और आपके फ्यूचर को बहुत इफेक्ट करेगी। अगर आपने कुछ ऐसे लोगों के बीच में बैठना शुरू कर दिया है वो वेरी मटीरियलिस्टिक, ऑल दे टॉक अबाउट इज ब्रांड्स एंड दिस एंड दैट एंड व्हाट आई ओन एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ समथिंग और द अदर, एंड देन दे विल आल्सो बी अ काइंड who just like gossiping, who just sit even in an office in a professional environment, all that they are interested in is कि वो क्या कर रहा है, फलाने ने क्या कर लिया, so there's gossip and complain and blame. Doesn't that tell us a lot about their personality? It tells us about कि वो किस जगह पे फोकस कर रहे हैं।
और किस जगह पे वो इंजॉय कर रहे हैं और वो किस जगह पे वो ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी कोई चीज़ वो उससे कुछ उनको फ़ायदा हो रहा है। किसी जगह पे उनको ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे फ़ायदा है। सो we're wanting to do things for ourselves most of the time. We're also looking to see कि हमें कहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर मैं ये यहाँ बैठूँगी तो यहाँ मुझे फ़ायदा होगा, मैं इससे बात करूँगा तो यहाँ मुझे फ़ायदा होगा। तो ये भी एक कल्चर उसमें आ जाता है। पर्सनैलिटी में मैं उसको बिल्कुल कम्प्लीटली ये नहीं बोलूँगी कि उससे हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि इस शख्स की क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन हमें हाँ थोड़ा एक खिड़की या एक दरवाजे का एक रुख पता चल सकता है। अच्छा, और अगर आप अपने जो लोग आपके अजीज़ हैं उनकी गुफ्तगू पे आप नज़र रखें तो आपको अंदाज़ा ये भी हो जाएगा कि उनके जहन में क्या चल रहा है। तभी कहा जाता है अगर आपके घर में इफ़ यू हैव टीनेज चिल्ड्रन, लिसन टू व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट देयर लैंग्वेज इज़ एंड व्हाट देयर बॉडी लैंग्वेज इज़। बहरहाल जी, लीडर्स दो तरह के होते हैं, ये मैं आलिया से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। लेट्स लिसन टू देम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब क्या कहेंगे? मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात ये है कि लीडर्स जो होता है ना वो 24/7 होता है। हमारे यहाँ वो स्टेज के लीडर्स होते हैं। बात ये है कि आपको जब आपका जो कंडक्ट है, लीडरशिप एक स्किल जरूर है, लेकिन ये बाद में बनता है। लीडरशिप गिफ्टेड है, पहले उसको जब आप पॉलिश करेंगे तो वो एक स्किल बन जाएगा। आपके कंडक्ट को लोग देखते हैं। हमारे यहाँ ये है कि सिर्फ स्टेज पे आके आप लीडर बनते हैं, आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस वो करती हैं चीजें सारी आवाम के लिए। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बहुत इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। इनफैक्ट यहीं से बात शुरू करते हैं। आलिया जी, इन्होंने कहा कि लीडरशिप इज़ अ गिफ्ट, लाइक इट्स कुदरत की तरफ से मिला हुआ आपको तोहफा होता है, इनेट एबिलिटी है। आप इस बात पे यकीन रखती हैं? मैं इस पे एग्री तो नहीं करूँगी। आई थिंक लीडरशिप जो इफ आई वाज टू गिव इट वन एक्सप्रेशन, लीडरशिप इज़ अ माइंडसेट। More than anything, it's a mindset, it's an attitude. अगर it's based on values, it's based on cultures. मैं ये ज़रूर agree करूँगी कि it's not like ये stage पे आप leader हैं और घर जाके नहीं हैं. It's how you are as a human being. It's a mindset based on values, based on culture, based on so much. And you can be leading yourself. You can be leading yourself. You can be leading lots of people. Yes. Leadership is a mindset. And now some people feel like, well, I'll never be able to lead anybody. Well, that's not true, because ये skills भी हैं. There are skills and attitudes and behaviors that can enable you to enhance your capability as a leader. Now, कभी-कभार लोग, yes, वो manipulate करते हैं. They're in it for themselves. वो ज़रूर होता है. But I think in our opinion, Andy will probably agree with me, that anyone can be a leader. Yeah. It's about an attitude, and then there are behavioral capabilities जो हम सब learn कर सकते हैं, हम सब सीख सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो कहेंगे कि भाई हमें दो तरह के लीडर्स से हमारा वास्ता पड़ा है। One who are energy givers and then there are those who are energy drainers. Oh, yes. So we are going to talk about both of them. अब ये आपकी किस्मत है कि आपको कौन सा वाला लीडर मिला है, but how to navigate and rather circumvent problems while you have a certain kind of a leader. We'll talk about that right after a short break.